Hi guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to continue my teaching series that I've been making. And for the ones who have been watching know that I've talked to you about things you should know inside your OT, things that are expected as a new JR1. And also, I have talked to you about OT preparation, how you actually do it. And um, further on, I want to be talking to you about what kind of drugs you need to keep inside your OT. जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बात करने वाली थी बट ऑब्वियसली वो बहुत लंबा हो जाता, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग अनदर वन. सो let's talk about that. So first of all, let me just talk to you about emergency drugs, because that is really important as an anesthesiologist. Of course, I'm telling you about all of these drugs and everything, and things you should know to keep inside your OT, so that you are not scolded in the OT. Because it's like, if your senior asks for anything, any of these drugs, it should be on your fingertips. आपको पता होना चाहिए क्या कहाँ रखा है. And जब कोई सीनियर आता है ओटी में और पूछता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही जस्ट आस्क्स यू फॉर LOX-2%, okay, and if he is asking you for that, you just have to hand it over, not thinking once. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहाँ रखा है, क्या रखा है, and you should just hand it over to him. तो ये रिस्पॉन्स होना चाहिए. मतलब हमारे यहाँ तो यही था. आजकल चीज़ें चेंज हो सकती हो रही होंगी, बट it's not something you are used to. I think it's better. ठीक है, आप better resident बनोगे if you're something जिसको पता है, you are someone जिसको पता है कि सब चीज़ें कहाँ रखी हैं, and कोई senior आता है and they like, आप जब भी वो एंटर करते हैं and whenever they're asking you for anything, you're just like okay, फास्ट रेस्पॉन्ड कर रहे हो. तो ये एक चीज़ होती है जो कि लोग देखते हैं. ठीक है, आपके सीनियर्स भी डिस्कस किया करेंगे आपके बारे में कि यार ये फटाफट चीज़ें कर लिया करता है, इसके मतलब ओटी में हम जाते हैं तो हमको दिक्कत नहीं आती है. तो ये होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आप जैसे ओटी में पेशेंट ब्राडी हो रहा है एंड यू डोंट नो वेयर योर एट्रोपिन इज. ये नहीं होना चाहिए. So that kind of behavior is going to irritate your seniors. That is why I think you should know what drugs to keep. That is one thing, of course. But also, yes, you are going to be an anesthesiologist. You should know what drugs should be inside your OT, क्योंकि आगे चल के आप ही को काम आने वाला है. So first of all, let's just talk about emergency drugs. तो इसमें मैं बात करूँ broadly तो हमारी दो ही चीजें हैं जो हो सकती है. ठीक है, आपको एक चीज होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि एक आपका होता है हार्ट रेट. ठीक है, आप ये चाहते, सी, for emergency purposes, all emergency purposes, you don't want your patient to crash. ठीक है, तो बेसिकली हमारा यही चीज है, एम है कि हमारी इमरजेंसी ड्रग्स क्या होगी, वो चीजें जो that is helping us to revive our patient, something like that. So if let's say if let's consider a scenario where your heart rate is decreasing, so you just want something that is going to increase your heart rate, right? So if the heart rate is decreasing, you want some drug that is going to increase your heart rate. Okay, तो ये क्या है, ये क्या चीजें हैं? ये एक होता है एट्रोपिन. ठीक है, विच इज रेगुलरली, आई थिंक ये नॉर्म है हर जगह, आप कहीं भी जाओ तो ये एक ड्रग होता है जो हमेशा लोड करके रखा जाता है, और ये करना भी चाहिए क्योंकि एनी टाइम पेशेंट गोज ब्राडी, तो ये पहला ड्रग होता है जो हम तुरंत इंजेक्ट करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग. वन मोर ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर द सेम पर्पस इज योर ग्लाइकोपाइरोलेट. एंड कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले ये देते हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट पहले देते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर वर्किंग विद. सबका तरीका काम करने का अलग होता है. कुछ लोग एट्रोपिन ही पसंद करते हैं, सीधा दे देना. कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अगर ब्राडी नहीं है, लाइक से कभी कभी होता है कि सडनली योर हार्ट रेट इज गोइंग टू 40s 30s. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट थिंक अबाउट गिविंग ग्लाइको. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you will give atropine. But if your heart rate is around, let's say 50s, तो ऐसा होता है कि आप ग्लाइकोपाइलेट देने का सोच सकते हो. यू कैन सी इफ द हार्ट रेट इज कमिंग अप, एंड डिपेंड करता है. सम पीपल हैव अ रेस्टिंग पल्स रेट व्हिच इज लेस, मतलब इनिशियली ही उनका प्री ऑप में ही कम होगा. तो वैसा अगर कोई पेशेंट है और इंट्रॉप उसका कम है हार्ट रेट, लाइक लेट्स से 48 49 चल रहा है, तो it is okay. Some consultants will be okay with that pulse rate. Some consultants would want कि उसको हम बढ़ा दें, तो उस केस में भी वो देते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट. तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम करते हो, कहाँ हो. तो ये सब तो पर्सनली you experience everything and then you'll understand कि कौन सा देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए. बट यार ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एट्रोपिन लोड करके हमेशा रखना होता है. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज फॉलोड एवरीवेयर. तो ये एक चीज हो गई. ठीक है, ये एक चीज हो गई हार्ट रेट को लेकर के. Another thing that is really important
is you also don't want your BP to go down. ठीक है, hypotension is also a reason for your patient crashing. Okay, your मतलब emergency situation arise हो सकती है उस चीज से. So another thing that we want to be talking about is basically hypotension. And this was basically what we were talking about was bradycardia. ठीक है, और ये जो हम हाइपोटेंशन के बारे में बात करें, विच इज बेसिकली योर ब्लड प्रेशर दैट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो ऐसे केस में जो है जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लाइक लेट्स से योर बीपी इज 60/40 समथिंग लाइक दैट, तो आपको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप कोई दवाई उनको दे दो उस पॉइंट पे, बिकॉज अदरवाइज द पेशेंट विल क्रैश. ठीक है, फिर उसके बाद एक देखो एक पॉइंट के बाद एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसके बाद अब रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इट्स बेटर कि ऐसे यू नो पॉइंट पे जहाँ बीपी ऐसा कुछ है, या फिर लेट्स से कि योर बीपी वाज अराउंड लेट्स से 140/90 था और आपने स्पाइनल दिया या कुछ दिया एंड योर बीपी इज नाउ 90/60. So then some people at this point of time will also give something to increase the BP because because बहुत ज़्यादा drop हुआ है from 140/90 to 90/60 is a huge drop. So some people will give what I'm talking about is basically mefentramin, जो एक और ड्रग है जो रेगुलरली यूज किया जाता है हर जगह, एंड दिस इज ऑल्सो लाइक एट्रोपिन, इट इज ऑलवेज लोडेड एंड केप्ट. ठीक है, इसको कैसे लोड करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगी, नॉट इन दिस वीडियो. सो दिस इज अनदर वेरी कॉमनली यूज ड्रग एंड अ वेरी गुड ड्रग, आई मस्ट से. बहुत ही गो टू ड्रग होता है फॉर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एंड दीज 2 सिरिंजेस आर वेरी बेसिक. ठीक है, ये हमेशा आपकी ओटी में होना चाहिए. इफ यू आर अ न्यू जेआर, प्लीज ये मिस्टेक मत करना. हमारे बैच में बहुत लोगों ने ये मिस्टेक्स की हैं कि एट्रोपिन और मेफेंट्रामिन का ही सिरिंज नहीं रखा. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये दोनों चीज़ें हमेशा लोड करो, बिकॉज ये ना लोड करना इज़ अ वेरी बेसिक मिस्टेक. सीनियर्स भी गुस्सा होंगे और आपके खुद के लिए अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आगे चल के भी अभी मैं काम कर चुकी हूँ काफ़ी जगह, एंड आई हैव सीन एवरीवेयर, 3-4 जगह मैं काम कर चुकी हूँ, एवरीवेयर ये फॉलो होता है. ये कहीं मैंने देखा नहीं है कि कहीं लोड करके ना रखा जाता हो. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉलो करो, आपके खुद के लिए भी अच्छा है, आपके सीनियर्स के लिए भी अच्छा है. ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड along with this, so there are a few other drugs as well. So these include ephedrine, and you have phenylephrine, which are also go-to drugs for anesthesiologists. And usually ऐसा होता है कि ephedrine is usually used for LSCS में ज़्यादा use होता है, and if you read about all of your mechanism of action and everything, you understand why, and we'll go into the in-depth things later on. But yeah, this is used in your sections, and phenylephrine is usually used when you don't want your heart rate also to increase, क्योंकि usually मेफेंट्रामिन के साथ heart rate भी आपका increase होता है. So this does not increase the heart rate. So in places where there's a lot of tachycardia as well and there's hypotension, so then your phenylephrine is usually preferred. These are the other go-to drugs for anesthesiologists. Other than this, I think we have things like, so even if all of these things don't work, we have NORAD, we have adrenaline, we have dopamine, we have dobutamine, and I think it's too early for these kind of drugs, but I would just say you should know it. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए और आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि जब हम भी JR1 थे तो हमने ऑब्वियसली ये सारी चीजें यूज तो नहीं करी थी, ऑल दीज थिंग्स, बट इन सब चीजों की हमारे पास दवाइयां हम रखते थे. वी हैड अ लिस्ट, लाइक आई टोल्ड यू, वी वर गिवन अ लिस्ट कि ये सारे ड्रग्स, ये सब सामान होना चाहिए आपके ओटी में, एंड सो वी यूज्ड टू ऑलवेज मेक श्योर दैट दीज ड्रग्स आर इनसाइड आवर ओटी. ठीक है, वी यूज्ड टू मेक श्योर कि 3-4 एम्प्यूल नॉरैड के, एड्रेनालिन के, डोपामिन के, डोब्यूटामिन के, सब कुछ हमारे ओटी में हो, ये हम मेक श्योर करते थे. सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू शुड नो. ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं, दीज आर गो टू ड्रग्स फॉर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, बट इफ आगे चल के इफ देयर इज समथिंग कि पेशेंट क्रैश कर चुका है या बीपी बहुत ही ज़्यादा लो है, ऊपर आ ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, देयर इज सम सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू नीड टू यूज दीज ड्रग्स एज वेल. ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स भी आपके पास होने चाहिए. ये अगर आप ओटी में हो, लाइक से एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी या कुछ चल रहा है, इमरजेंसी केस है, एंड सीनियर इज आस्किंग यू कि नॉरैड कहाँ है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आई डोंट नो वेयर इट इज, नहीं है यहाँ पे, आप भाग रहे हो किसी और ओटी में लेने के लिए. डज नॉट गिव यू अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स. ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप ये सारी चीजें अपने ओटी में
रखो ये सारी सामान, ठीक है। इसके अलावा सो नाउ वी टॉक्ड अबाउट कंडीशंस वेयर द पेशेंट कैन एक्चुअली क्रैश, ठीक है। इसके अलावा लाइक वी टॉक्ड अबाउट योर डिक्रीज्ड हार्ट रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्रीज्ड हार्ट रेट। इंक्रीज्ड हार्ट रेट बेसिकली जो टैकीकार्डिया अगर हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है टैकीकार्डिया, तो आप क्या कर सकते हो, तब आप क्या ड्रग्स दे सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आपको रखनी चाहिए ओटी के अंदर। ओके, सो फॉर दिस आई थिंक यू नो फॉर ट्रांजिएंट, जो मैं क्या बोलूँ, फॉर अ शॉर्ट इफेक्ट, ठीक है, उसके लिए हम दिया करते हैं एस्मोलॉल। सो दिस इज समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रीज हार्ट रेट एज वेल एज टू डिक्रीज द बीपी। बीपी अगर बहुत ज़्यादा रहे तो भी हम इसके लिए भी एस्मोलॉल देते हैं। बहुत ही बढ़िया ड्रग है। एंड not in my when I was doing my residency, I've not used this drug too much, but in my when I was doing my fellowships, that I've used this drug a lot and it's great, ठीक है, एक्शन बहुत अच्छा होता है, but the shortcoming is it is short acting. तो in places like when you are extubating a patient, तो उस टाइम पे अगर उसका बढ़ रहा है बीपी, हार्ट रेट, और you want to just bring it down for some amount of time, तो ये ड्रग बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू शुड हैव इन योर ओटी। कुछ लोगों को आदत होती है कि एक्सट्यूबेशन के टाइम पे ये दे देना, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कीप इनसाइड योर ओटी, ठीक है। इसके अलावा और भी जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, क्योंकि काम की चीज़ है ये, बीपी, हार्ट रेट दोनों सेटल कर सकते हैं। सो थिंग्स लाइक योर मेटोप्रोलॉल एंड लैबेट शुड ऑल्सो बी देयर इनसाइड योर ओटी। अब जब हम भी रेसिडेंसी में थे तो हमने ये सारी ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की। पर्सनली मैंने नहीं यूज़ किया था। मैं जब रेसिडेंसी करके बाहर निकली तभी मैंने यूज़ किया है। बट एज अ JR1 आई हैव ऑल्सो केप्ट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनका एक एक एम्प्यूल हमेशा हमारे ओटी में होता था। एस्मोलॉल तो था नहीं हमारे, बट मेटोप्रोलॉल एंड लैबेट आई रिमेंबर दैट आई ऑलवेज यूज टू मेक श्योर कि मेरे ओटी के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्लस यू शुड ऑल्सो हैव NTG इनसाइड योर ओटी, कि अगर कोई हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, एंड मे बी योर ऐसे बहुत बार होता है कि आप किसी ओटी में हो एंड ये जो ड्रग्स मैंने आपको बताए इससे बीपी लोअर नहीं हो पा रहा है, देन यू गो फॉर NTG। तो NTG का यूजुअली एक इन्फ्यूजन बनाया जाता है। सो आई रिमेंबर ऑल्सो कीपिंग दिस ऑलवेज इनसाइड द ओटी। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, एंड फॉर इंट्रॉप पर्पसेज इट्स रियली गुड। फॉर इंट्रॉप आप इन्फ्यूजन लगा सकते हो, एंड इन द एंड यू कैन जस्ट टेपर इट ऑफ एंड we are good to go for the patient. तो ये कुछ चीज़ें हैं for lowering your BP as well as your heart rate. And other than this, I would just say, तो see यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि heart rate increase होना is to a certain extent is fine, but if बहुत ज़्यादा हो रहा है तो it is a worrisome situation, क्योंकि कभी भी fibrillation और ये सब होने के चांस होते हैं। ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं है ऐसा कोई सिचुएशन, बट थियोरेटिकली इफ योर हार्ट इज वर्किंग एट अ वेरी फास्ट रेट, इट कैन मेक इंक्रीज द वर्क ऑफ योर हार्ट, एंड जो ऑक्सीजन डिमांड, जो सप्लाई होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई, दैट कैन गेट ओवररिडन। बेसिकली जो आपका ऑक्सीजन आ रहा है, that will not be enough to support that kind of work that the heart is doing, और उसके बाद इस्कीमिया और ये सब होने की चांसेस होती हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप अवॉइड करो। जैसे मेरा ऐसा है कि चलो 110 120 मैनेजेबल, and you also have to rule out other causes of tachycardia, which I'll be talking about in another video. But what I'm saying is, if your heart rate shoots up suddenly, like for a patient who is running a heart rate of around 80s to 90s, and suddenly uska heart rate बढ़ गया है to around 130 140 150, if you see that it's suddenly rising, then it is worrisome. You need to do something about it, and उस टाइम पे definitely आपको action लेना होता है with these drugs. और anti arrhythmics भी आप use कर सकते हो, like amiodarone is an anti arrhythmic. So this was our go-to for whenever something like that happens, and this was also something that we always used to keep inside our OT, ठीक है। तो ये भी एक और चीज़ है जो आपको हमेशा एक तो रखना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा I think we talked about increased BP, right? So again, I would not say कि increased BP is going to cause something क्या बोलूँ, very immediate, but yes, you never know, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर BP बढ़ता है किसी का भी, there are chances
स्ट्रोक, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। बहुत हाई बीपी जो अगर 180 200 ऐसा अगर बीपी जा रहा है तो डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। ऑब्वियसली फॉर मोस्ट पेशेंट्स वी विल बी ऑप्टिमाइजिंग पेशेंट्स एंड टेकिंग अप द पेशेंट्स, पर इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज तो आपको वहीं पे लोअर करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा। उस केस में आपको यू शुड हैव ऑल दीज काइंड ऑफ ड्रग्स। अदर देन दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट ये सब हो गए फॉर कंट्रोलिंग, इट्स लाइक kind of a symptomatic thing to reduce the BP, reduce the heart rate. There are other, like I said, there are other causes of tachycardia, increased BP, that you also will learn. And वो सारी चीजें भी rule out करनी होती है. Only after that you go on to all of these drugs. But anyhow, these are the basic drugs that should anyways be inside your OT. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि any time you are stuck, कि आप दूसरे causes rule out करके भी अगर नहीं हो पा रहा है, you should always have these drugs in hand. Okay. You should never feel stuck yourself. So this is another thing. Other than this, I would just say that जैसे electrolyte abnormalities होते हैं, ये चीजें करेक्ट करने के लिए भी आपके पास सामान होना चाहिए. Basically, I'm talking about like things like if you land up with a patient of metabolic acidosis, then you will require सोडा बाइकार्ब, राइट? तो ये आपको नीड होगी. इफ यू एंड अप विथ हाइपरकलीमिया, यू विल नीड कैल्शियम ग्लूकोनेट. कैल्शियम ग्लूकोनेट के और भी यूजेस होते हैं, स्पेशली फॉर एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एंड यू विल सून फाइंड आउट अबाउट दैट. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट रिमेंबर दिस. इफ वी हैव हाइपोकलीमिया, then we need to correct it with KCl, right? And hyponatremia is something that is NS ही देना होता है. हाइपो जो नेट्रीमिया है इसमें NS ही देना होता है, बट दिस इज अ सोडियम का जो करेक्शन है, इट इज क्वाइट डिटेल्ड एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड है इसका, बहुत सारी चीजें इसमें. इस वक्त हम बस यही रखेंगे. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट यू ऑल्सो नीड टू कीप सोडा बाइकार्ब, कैल्शियम ग्लूकोनेट, KCl रेडी इन योर OT. जैसे हमारा भी था ऐसा, मतलब बहुत ही रेयरली सिचुएशन आता था कि हमको ये सारी चीजें यूज करनी होती थी. जैसे एक्सप्लोरेटरी लैब होता था या ऐसा कुछ होता था जहाँ पेशेंट बहुत ही खराब है और ABG बहुत खराब है, ऐसी चीजों में हमने ये सारी चीजें यूज की है. हमने बहुत रेगुलरली यूज नहीं किया है, बट अगेन आई जस्ट वांट टू से दैट these are things that we used to keep inside the OT, और रेडी होना चाहिए आपके पास कि कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो you should always have it. हमारा ऐसा होता था ना कि if we don't have these things inside our OT, कि कुछ मेरे बैचमेट्स थे ना कि they like नहीं यूज हो रहा है तो क्यों रखना है OT में, ऐसे करके कुछ लोग कर लेते थे कि मतलब रखते नहीं थे अपने OT के अंदर. एंड ऐसा होता था ना, अचानक उनके OT में कुछ हो जाता था ऐसे कि अचानक उनके OT में कुछ हो गया एंड दे नीड दीज थिंग्स, तो दूसरे OT में भाग के लेके आते थे और उनको सीनियर से भी पड़ जाती थी. एंड इट वाज बेसिकली इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन योरसेल्फ, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका OT अनप्रिपेयर्ड है. ठीक है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, तो ये इंप्रेशन पड़ता है. सो इट्स बेटर टू कीप ऑल ऑफ दीज ड्रग्स रेडी विथ यू. दैट्स ऑल आई वांट टू से. सो these are basically some emergency drugs that I wanted to talk about. Now let's talk about anesthesia related drugs. So anesthesia related drugs में first of all let's just talk about GA वाले जो medications होते हैं. ठीक है, GA वाले जो भी medications होते हैं. So इसमें first of all we have the sedative anti-anxiety जो हम usually देते हैं, सभी को पता होगा ये तो, and that's your Midas. हमेशा होना चाहिए. हम एक जो वायल होता है हमारे OT मशीन के सामने ही रखा होता था मिडास का, बिकॉज इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ड्रग. हमेशा होना चाहिए. ये भी अगर हमको हमारे सीनियर को मिल गया कि खाली पड़ा है क्योंकि कभी कभी होता था कि 5 ml का आता है तो ले के देन अगर फिनिश हो जाता है, एंड समटाइम्स हम ध्यान नहीं देते थे, मतलब हमको दिखता था कि रखा है वहाँ पे, हम ध्यान नहीं दिया, तो फिर सीनियर को अगर मिल गया कि खाली है तो लग गई फिर. तो that is also something you should check कि मिडास रखा हुआ है वहाँ पे. One more thing that is really important is मिडास. ये क्योंकि हमारे साथ होता था मिडास, like the drugs company will be different everywhere, but ये जो मिडास है और जो जो हमने पहले बात की थी मेफिनट्रेमिन जो है, दोनों के जो वायल्स है
सेम दिखते हैं बहुत ही, क्योंकि हम साथ में रखा करते थे, हमारा ऐसा सेट होता था कि सामने मेफ, मिडाज, प्रोपोफॉल ये सब सामने हम रखते थे, तो इन दोनों के वायल्स बहुत ही सिमिलर लगते हैं. सो आई जस्ट वांना गिव यू अ प्रिकॉशनरी नोटिस कि दोनों सिमिलर लगते हैं. जब आप लोड करो तो पढ़ के लोड करना हमेशा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ के लोड करो कि आप लोड कर क्या रहे हो. ओके, सो दैट्स one thing. Another thing that we regularly use basically to attenuate the intubation response and for other purposes as well, but anyhow for now I'll just say this. तो आपको fentanyl भी रखना होता है लोड करके. Actually this is set of drugs you have to load and keep for GA. वही वाले drugs मैं आपको बता रही हूँ. तो आपको मिडाज होना चाहिए, fentanyl आपके पास loaded होना चाहिए. Then you should have your what do I say, induction agent. तो ये आपको पता होगा कि 4 होते हैं, ठीक है. तो आपका बेसिकली whatever case you have, usually we go for propofol. हर जगह यूजुअली प्रोपोफॉल ही यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन द केस. लाइक इफ इट्स अ कार्डियक केस तो हम इटोमिडेट यूज करते हैं. इफ इट्स अ न्यूरोसर्जरी का केस तो थायोपेंटोन यूज किया जा सकता है, which is usually not done nowadays. Propofol use करते हैं, but theoretical purposes में, and some people like to go with theory. Some consultants will use thiopentone. तो उनके लिए आपको thiopentone ready रखना होगा. And for people who want like just shock वगैरह में या फिर for peds cases हम लोग ketamine भी use करते हैं. तो depending on whatever your consultant wants, depending on the case. This is depending on the case. Not every time you have to keep all of these things. बट सी इफ अगर आपके ओटी में कोई हाई रिस्क कार्डियक का पेशेंट है तो डेफिनेटली आपको इटोमिडेट रखना है, ठीक है. ये डिपेंड्स ऑन योर कंसल्टेंट. एंड अगर पीडियाट्रिक केस है यूजुअली दे वांट कीटामिन, डिपेंड्स अगेन ऑन योर कंसल्टेंट, बट डिपेंड्स केस टू केस. आपको केस के हिसाब से पूछ ताछ के रखना है ये सारी चीजें. बट या प्रोपोफॉल शुड ऑलवेज बी देयर irrespective of whatever case that you have. Other than this, you need to have your muscle relaxant, ठीक है. तो मसल रिलैक्सेंट में आपके पास अगेन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं एंड नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं. सो फॉर डीपोलराइजिंग वी हैव योर स्कोलिन एंड फॉर नॉन डीपोलराइजिंग यू हैव मेनी दीज डेज. यू हैव एट्रैक, यू हैव वेक, यू हैव सिस एट्रैक, you have rock. So depending on the case, depending on the consultant, this is all something that is personalized. It depends on what your consultant wants. So depending on that you will be using up or keeping that drug. Usually आजकल अट्रैक और वेक ही जो मैं देख रही हूँ हर जगह यूज होता है. Some places people like to use this attract as well. Okay. तो ये हो गए हमारे मसल रिलैक्सेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये सारी चीज़ें तो रेगुलर होती हैं, यूज़ करनी होती हैं, बट स्कोलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स एन बेसिकली इमरजेंसी काइंड ऑफ अ ड्रग है एंड डिफ़िकल्ट इंटुबेशंस या डिफ़िकल्ट एयरवेज में बहुत यूज़ होता है. एंड आई जस्ट वांट टू से दैट इवन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस, अगर आपको काम नहीं है इसका, आपको बोला ही नहीं है किसी ने रखने के लिए, फिर भी ये होना चाहिए ओटी के अंदर. आगे चल के आपको इसका काम समझ में आएगा, ठीक है. यूजुअली यही चीज़ें यूज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म में यही यूज होती हैं, बट ये भी काम आता है, ये आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है. ऑलराइट. इसके अलावा यू शुड ऑल्सो हैव योर एंटी इमेटिक्स लाइक एमसेट, पेरिनॉम, ठीक है. और इसके अलावा आपके जो स्टीरॉइड्स हैं बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, स्पेशली हेड एंड नेक जो केसेस होते हैं. और क्योंकि हम एयरवे के साथ ही मैनिपुलेट करते हैं चीज़ें, हम लोग एयरवे में ही घुसे रहते हैं, तो वहाँ इडिमा और ये सारी चीज़ें होने का चांस है. सो इट्स वेरी कॉमन कि अगर आपने ज़्यादा मैनिपुलेट कर लिया, फॉर एग्जांपल एक JR1 ने किया है इंटुबेशन, फर्स्ट इंटुबेशन था, ऐसे 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 किया है, तो मैंने कंसल्टेंट्स विल जस्ट से कि एक स्टीरॉइड दे दो, हाइड्रोकॉर्ड डेक्सा कुछ तो भी दे दो. सो मेक श्योर कि हाइड्रोकॉर्ड डेक्सा हो आपके पास. कुछ लोगों का फेवरेट होता है, कुछ लोग यूं ही दिलाते रहते हैं. सो इट शुड ऑलवेज बी देयर इनसाइड योर ओटी. ऑलराइट. अदर देन दिस आपके पास एनाल्जेसिक्स होने चाहिए ओटी के अंदर, क्योंकि आप ओटी करा रहे हो, सर्जरी करा रहे हो, ऑफ कोर्स पेशेंट को पेन होगा, राइट. तो PCM होना चाहिए, रेगुलरली यूज होता है. ट्रेमाडोल होना चाहिए, रेगुलरली यूज होता है. डाइक्लोफेनाक होना चाहिए, रेगुलरली यूज होता है, ठीक है. ये कुछ चीज़ें हैं.
Now this depends, like everywhere the kind of analgesics that are used are very different and depends consultant to consultant किसको क्या पसंद है. कुछ लोग कीटोरोलैक भी यूज करते हैं, कुछ लोग नालबिफिन यूज करते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और डिपेंड्स ऑन व्हाट योर कंसल्टेंट रियली वांट्स, व्हाट इज अवेलेबल वेयर यू वर्क. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. अदर देन दिस आई वुड जस्ट से सर्जन्स के लिए, सर्जन्स फेवरेट होते हैं Trenexa और Lasix. Make sure it's always inside your OT, क्योंकि some surgeons will be really, मैं क्या बोलूँ, they will be really irritated with you just for being a junior. ठीक है, they'll be just like आपने अभी तक दिया क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं. तो और अगर आपका सर्जन चिल्लाएगा तो आपका सीनियर और चिल्लाएगा. So it's better to keep these drugs with you. Trenexa दे दो बोला दे दो, Lasix दे दो बोला दे दो. ठीक है, तो this should be handy with you always. Another set of drugs that I also want to talk about is basically your local anesthetics. और अभी शायद आपको समझ में नहीं आए कि क्या चीज़ें हैं, बट आई वुड जस्ट से ये सारी जस्ट याद रख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ओटी में होनी चाहिए. जैसे लॉक्स 2% है, लॉक्स प्लस ADR है, ये भी लॉक्स 2% प्लस ADR होता है. Then you have bupivacaine 0.5%. Then कहीं कहीं bupivacaine 0.25% में भी अवेलेबल होता है. अगर वो है तो यूजुअली ब्लॉक्स के लिए यूज होता है ये, एंड ऑल्सो फॉर एपिड्यूरल्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्लॉक्स और एपिड्यूरल्स के लिए यूज होती हैं, तो आपके ओटी में होना चाहिए ये. Then you also have something called ropivacaine. तो ये भी 0.2% आता है, 0.75% आता है, तो ये भी यूज़ होता है. आपका सीनियर आपको पूछ सकता है कि ये कहाँ है, तो इट शुड बी देयर विथ यू. एंड देन यू हैव लॉक्सिकार्ड एंड अदर देन दिस यू हैव bupivacaine हेवी, जो कि हम स्पाइनल में देते हैं. एंड सम पीपल ऑल्सो हैव ropivacaine का हैवी वर्जन, जो अगेन स्पाइनल में दिया जाता है. तो ये चीज़ें हम स्पाइनल में देते हैं, ये सब स्पाइनल के लिए है. और भी ड्रग्स होती होंगी, अब जो मैं कह रही हूँ ना, इट्स द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल इज डिफरेंट एवरीवेयर, द काइंड ऑफ थिंग्स पीपल यूज इज डिफरेंट एवरीवेयर. तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ क्या चलता है, क्या यूज़ होता है. तो ये चीज़ें जो भी आपके यहाँ यूज़ होती हो वो आपके ओटी में होनी चाहिए. यूजुअली आई थिंक स्पाइनल के लिए bupivacaine हैवी हर जगह यूज़ होता है, इट्स द स्टैंडर्ड. सिर्फ जो कार्डियक केसेस होते हैं वहाँ पे यूजुअली वी प्रेफर कि आप ropivacaine दे दो, तो उन केसेस में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट. Other than this, जो लॉक्सिकार्ड is the only one that is given IV. ठीक है, इसको हम बेसिकली जो प्रोपोफॉल का इंजेक्शन होता है, इट्स पेनफुल, तो उसके पहले देते हैं टू रिड्यूस द पेन दैट यू गेट ऑन इंजेक्टिंग प्रोपोफॉल. दिस इज द ओनली वन दैट कैन बी गिवन IV. नथिंग एल्स शुड बी गिवन IV. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो हम ब्लॉक्स और एपिड्यूरल्स के लिए यूज़ करते हैं. ये जो लॉक्स 2% है, लॉक्स प्लस ADR है, और ये सारी चीज़ें. तो व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू इज ये आपके पास रेडी होना चाहिए. एनी टाइम योर सीनियर कम्स इन एंड इज लाइक चलो इसको ब्लॉक देंगे, या फिर आपने एपिड्यूरल डाल के रखा है अपने ओटी में, तो दिस शुड बी रेडी विथ यू. कि सीनियर आपको कभी भी बोले कि जैसे इसका टेस्ट डोज दिया जाता है, तो अगर इसका टेस्ट डोज देना है तो दे विल बी लाइक चलो लॉक्स प्लस ADR जो है 3 ml इंजेक्ट करना है. तो आप ये नहीं कि आप उनको देख के आश्चर्यचकित हो रहे हो या किसी और ओटी में भाग जा रहे हो. यू शुड हैव इट रेडी एंड you should just simply load it in your syringe and be giving it, not be running here and there, not be disoriented. ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं. आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आई फील जो भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए ओटी के अंदर. इफ देर इज someone who is already an anesthesiologist who's watching, and maybe you feel like something is missing, you can let me know. Okay, one more thing that I kind of missed over here, basically your reversal मिस कर दिया. तो आपका जो रिवर्सल है उसके लिए आप लोड करते हो नियोस्टिग्मिन एंड ग्लाइको. तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 7 to 8 ampules हो आपके पास नियोस्टिग्मिन के. एंड इफ़ यू हैव नाउडेज यू गेट मायोपाइरोलेट, जो ऑलरेडी वो मिक्स करके दे देता है. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट इन फ्यूचर वीडियोज़, बट जस्ट मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें हों.
ठीक है, ये रिवर्सल में यूज होती हैं। हो सकता है आपके पास नावपैरेलेट हो तो ज़्यादा काम नहीं है, बट इफ़ यू हैव नियोस्टिग्मिन इन योर प्लेस, यू मेक श्योर कि 7 से 8 हो, क्योंकि उतने लग जाते हैं। प्लस मेक श्योर यू हैव 2 to 3 ग्लाइको इन हैंड विथ यू। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ अगेन यू आर समवन हु इज़ एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, देन लेट मी नो कि अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो जस्ट लेट मी नो, एंड विल जस्ट एड इट फॉर अदर new JRs who are coming in. And if you're someone who's been watching my previous videos as a new JR one, hope this is something that has helped you out, and let me know if you found this helpful. Let me know if you would want to see more such topics, and let me know if there's something that you want me to be talking about specifically, and I'll definitely make a video on that and help you out with that. And yeah, I'll see you for another one.